देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, Brajmandal Parikrama. So yesterday we started from Madhuvan, and from Madhuvan we went to Talvan, and from Talvan we went to Kodavan, and then Bahulavan. So yesterday we covered 3 months, and from there towards Radhakund we are going. Radhakund is also a village, and from Ral we are going towards Basanti, and from Basanti Ral we are going towards Radhakund village. हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा के 10वें दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने मधुबन से शुरुआत की थी। मधुबन से हम लोग तालवन गए थे, तालवन से कुमुदवन, कुमुदवन से बहुलावन, और अब हम बसंती गांव से होते हुए अब हम राधा कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। So Radha Kund is considered, the Kund is separate, and there is a village surrounding, there is a village called Arishta. The village is also called as Arishtasur village. तो राधा कुंड जो स्थान है वो एक भिन्न स्थान है, और राधा कुंड जहाँ पे स्थित है उस गांव का नाम है अरिष्ठासुर गांव। So within that Radha Kund village we are having the Govardhan hill. और उस राधा कुंड जो गांव है उसके प्रांगण में ही ये गोवर्धन पर्वत जो है वो स्थित है। So before going for the Govardhan Parikrama, we will get to know about the history of how Govardhan hill came to Brajmandal, Brajadam. गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले हम गोवर्धन के व्यापक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। So this is mentioned in Garga Samhita. इसकी कथा जो है गर्ग संहिता में बताई गई है। So in near Himalayas, during Satya Yuga time, there is near Himalayas there is a dvipam called Shalmali Dvipam. हिमालय के निकट में एक शालमली द्वीप स्थित है। So the discussion, so the discussion about the history of this happened between Nanda Maharaj and Upananda, and then the same has been narrated between Pandu and Bhishma. तो इस इतिहास की चर्चा जो है वो नंद और उपनंद के बीच में के दरमियान हुई थी, और यही चर्चा जो है वो भीष्म और पांडु के मध्य में भी हुई थी। So this Govardhan's father is Drona in Himalayas. So when Drona son, this Govardhan, was near Himalayas, he was considered as most beautiful son, with so much of nice green pasture, lot of trees, lot of nice animals, and just by looking at the mountain, everybody will be surprised, and everybody will be attracted to the mountain. द्रोण गोवर्धन के पिताजी का नाम है द्रोण, और गोवर्धन पर्वत जब अपनी युवावस्था में थे उस समय उन्हें बहुत ही सुंदर और रमणीय पर्वत के रूप में विख्यात थे। वहां पे जो हरियाली थी, वहां पे जो गायों और आदि जानवरों के लिए जो चरने के स्थान थे और झरने इत्यादि, इस पर्वत को बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही सुंदर बना दिया था। And then one day Pulatsya Muni, on the way to Himalaya, he sees the mountain, he will be so much attracted. Then he will go and ask Drona that we need a nice mountain in our place towards west, and we want to do tapasya and we want to do yajna and all. So we need a very nice sitting place. So can we take your son? Like that he will ask. एक दिन की बात है, पुलत्स्य मुनि जो है वो रमण करते हुए हिमालय के तलहटी पे पहुंचते हैं। वहां पे वो गोवर्धन पर्वत को देखते हैं और वो बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं। वो उनके पिताश्री द्रोण के पास जाके उनसे विनती करते हैं कि क्या मैं इस गोवर्धन पर्वत को अपने साथ पश्चिम की ओर ले जा सकता हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे निवास करते हैं वहां पे कोई पर्वत नहीं है और हमें पर्वत की आवश्यकता है जिसपे स्थान लेकर हम साधना और तप इत्यादि कर सके। He will say, "Oh, he is my beautiful son. I don't want to
I don't want to leave him and all. But Pulitya Muni also will insist, no, I want him. So they don't want to get into aparadh. So Himalaya will say, Drona will say, okay, you can take my son. And Govardhan will say, okay, I will come with you, but there is one condition. You can take me. How will you take me? Like, I'm a very big mountain. Pulitya Muni will say, I am a very powerful Muni. I can carry you. I have a lot of power. Like that he will say. तो द्रोण जो है पुलिस मुनि की विनती सुनकर द्रोण जो है वो पहले तो ना नुकुर करते हैं कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, बहुत ही सुंदर पुत्र है, मैं इसे कैसे जाने दूं। और फिर वाद विवाद के भय से और अपराध के भय से पर्वत द्रोण जो है वो पुलिस मुनि की बात की सहमत हो जाते हैं कि आप गोवर्धन को ले जा सकते हैं अपने साथ। गोवर्धन जो है वो प्रश्न करते हैं पुलिस मुनि से कि मैं तो इतना विशाल पर्वत हूं, आप किस तरह मुझे ले जा पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत विशाल हूं और आप कैसे ले जाएंगे। तो पुलिस मुनि ने कहा कि मैं बहुत तपस्वी हूं और मुझे आपको ले जाने में कोई संशय नहीं है या कोई भय नहीं है, मैं आपको आसानी से ले जा सकता हूं। So, but Govardhan will say, okay, I will give you one condition. So on the way to your place, even if you stop me at any one particular place, then definitely I will not move from that place. Then Drona will say, no, that I will take care. I will not do anything. So with that condition, Drona carries Pulitya Muni carries Govardhan from the Himalayas, and he keeps walking. And on the way near Vrajamandal place, when we comes to near this Vrajamandal, just by seeing the Vrindavan and so many forests, Govardhan will have so much of passion, so much of love and affection to the place, and he wanted to stay in that particular place. So he will just kind of make a trick by which Pulitya Muni had to attend a nature's call. गोवर्धन जो है वो पुलिस मुनि से कहते हैं कि मैं एक स्थिति में आपके साथ चल सकता हूं, अगर आप मुझे जहां लेके जाना चाहते लेके जाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बशर्ते आप मुझे कहीं रखेंगे नहीं, और आप जैसे ही मुझे रखेंगे फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं और फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। पुलिस मुनि उस पर सहमति बन जाती है और पुलिस मुनि गोवर्धन पर्वत को उठाकर चलते हुए जाने लगते हैं। चलते हुए ब्रजमंडल में पहुंच जाते हैं। गोवर्धन पर्वत जब ब्रजमंडल में पहुंचते हैं और तब यहाँ की हरियाली, यहाँ के रहन सहन और जो भी वहाँ का जो वातावरण है उसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और फिर वो यही इच्छा करते हैं कि मैं किसी तरह से इसी ब्रजमंडल में ही ठहर जाऊं और इसी ब्रजमंडल में ही रह जाऊं। और इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो एक योजना रचते हैं, और जिसके द्वारा पुलिस मुनि को लघु शंका हो जाती है, लघु शंका का उन्हें भान होता है। So he keeps the mountain, Govardhan mountain in this place, and after attending, he tries to lift him up. He couldn't lift Govardhan. So he becomes angry and curses him that every day one mustard seed size you will be reduced. पुलिस मुनि जो है गोवर्धन पर्वत को नीचे रख के लघु शंका अपनी दूर करने जाते हैं। लघु शंका दूर करके जब वो वापस आते हैं तो फिर पुनः वो गोवर्धन पर्वत को उठाकर ले चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे कि पहले सहमति हो चुकी थी, गोवर्धन पर्वत ने कहा था कि एक बार मैं जहां बैठ जाऊंगा वहां से फिर वापस नहीं जाऊंगा। पुलिस मुनि को ये भान हो जाता है कि ये जो है ये गोवर्धन की इच्छा ही नीचे जाने के लिए, तो वो क्रोधावेश में आकर वो श्राप देते हैं कि हे गोवर्धन, तुमने मेरे साथ छल किया है तो मैं आपको श्राप देता हूं, तुम हर रोज जो है राई के तिनके के एक दाने के बराबर घटते चले जाओगे। So now initially, as per Shastras, it was like 115 kilometers long and 72 kilometers wide, very huge mountain. But शास्त्रों go ahead. शास्त्रों के आधार पर हम ये समझते हैं कि गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई थी पहले 115 किलोमीटर लंबा और 72 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा, इतना विशाल जो था गोवर्धन पर्वत था। But by Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga and Kali Yuga, it is reduced, and then now it is just only 80 feet high and around 24 kilometers in the circumference. काल के प्रभाव में और काल के प्रभाव से और पुलिस मुनि के श्राप से गोवर्धन पर्वत जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग में आते आते
अब इतने नीचे हो गए हैं कि अब आप उन्हें अब जो उनकी स्थिति है वो है अब 80 मीटर ही ऊंचाई उनकी रह गई है। And it is mentioned that no, after 10,000 years or some more years, during the Kali Yuga period, at the last part of Kali Yuga period, the mountain will completely get reduced or disappear. और आचार्यगण बताते हैं कि कलयुग या तो अगले 10,000 साल पे या कलयुग के अंत तक एक ऐसा समय आएगा जब गोवर्धन पर्वत इस भौतिक जगत से ही विलुप्त हो जाएंगे। There's one more nice pastime in Ramayana with related to Govardhan that is also mentioned, where when Hanuman went during the bridge, the Ram Setu bridge construction time, all the Vanaras went here and there to bring lot of big stones in mountains. So Hanuman also came to Himalaya, and then he carried so many mountain stones and all. So at that point of time, when Hanuman came and when he took the big Govardhan mountain, and when he was carrying it towards Sri Lanka, but by the time when he reached Vrajbhumi, Nal and Nil, the engineers who constructed the bridge, they shouted back from there or conveyed that no, the construction of the Sedu, Ram Sedu is complete, so no need of more stones. So immediately Hanuman will just keep the mountain in the Vrajbhumi itself. तो इस गोवर्धन पर्वत से संबंधित एक कथा जो है वो रामायण में भगवान रामचंद्र जी की लीला के प्रसंग में भी आती है। तो जब वानर लंका के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, उस समय बहुत ही पत्थरों की आवश्यकता थी। उस समय हनुमान जी जो जाते हैं और हिमालय से बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं लेके आते हैं जिससे उस पुल का निर्माण हो सके। फिर हनुमान जी जो है इस गोवर्धन पर्वत को भी देखते हैं और फिर यहाँ आके उसे गोवर्धन पर्वत उठाकर ले जाने लगते हैं पुल निर्माण के लिए। फिर जैसे ही वो उड़ते हैं और उस स्थल पे पहुंचने वाले रहते हैं, नल और नील कहते हैं कि नहीं, पुल का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है, अब हमें अधिक जो पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को पुनः ले जाकर ब्रज की भूमि पे ही उन्हें वापस छोड़ के चले आते हैं। So at that point of time, Govardhan will be very unhappy, very sad that he was not able to do any seva for Lord Rama. So Lord Ram will say, "Don't worry. In the next yuga, I will personally come. I will play with all my Gopa friends. We will do lot of leelas with you." Like that he will say. गोवर्धन पर्वत इस वजह से काफी दुखी होते हैं कि वो अपने आप सोचते हैं कि मैं जो हूं, मैं भगवान की सेवा में नहीं लग पाया, तो बहुत व्यथित होते हैं। भगवान रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में कृष्ण की जब मैं आऊंगा तब मैं आपके साथ बहुत ही लीलाएं करूंगा और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ आपके इन जो रमणीय स्थल है, ये जो वन है, इसमें मैं विहार भी करूंगा। One more important thing is it is mentioned that in Shastras, even before advent of Shri Radha Krishna in the Vrajmandal, Radharani will give one specific condition. Before I want to advent or I want to come, I want Vrajabhumi, the complete Vrajabhumi to be available, and also Radha Kund, Sham Kund, which is eternally available. It is eternally there in the spiritual Golaka. The same Radha Kund, Sham Kund should be there, and also Govardhan Hill should definitely be there. Then only I will descend. Like that she will say. Then Krishna will definitely assure that yes, definitely all of them will come, and he's already come. You can descend now. Like that he will say. तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि राधा कृष्ण जब भगवान कृष्ण और राधा रानी जब इस धराधाम पे आने से पहले राधा रानी जो है वो भगवान से कहती हैं कि मैं धराधाम पे इस भौतिक जगत में तभी अवतार लूंगी जब जो मेरी व्रज जो है वो पूरी तरह से पहले से ही वहां पे मौजूद होगा, क्योंकि राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि जो जगह है ये गोलोक में भी हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे सारी जो वस्तुएं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, ये सारी वस्तुएं जो है हमें भौतिक जगत में ही चाहिए, भौतिक जगत में भी चाहिए, अगर ये सब होंगी तभी मैं अवतार लूंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अब हाँ, तब जब अवतार लेने का समय आता है तो भगवान बताते हैं उन्हें कि जो सारी वस्तुएं हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन पर्वत, ये सारी जो जगह है वो ब्रजभूमि में उपस्थित है, अब आप अवतार ले सकती है। We should understand that Govardhan is completely spiritual.
and it is eternal also. और हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गोवर्धन पर्वत जो है वो शाश्वत है और शाश्वत है. So this is the history of Govardhan Hill, and in the Govardhan Hill Leela, Krishna himself manifests in the form of the hill to take all the offerings. So this worshipping the Govardhana hill story, I believe you all know. तो ये गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सबको पता होगी. तो इस लीला में भगवान जो स्वयं है गोवर्धन का रूप धारण करके सारे जो भोग जो अर्पण किए जाते हैं सारों को वो खा लेते हैं. So I'll just give you a quick background. Like every year, the Brajvasis will worship the Indra, called Indra Puja, and then Krishna wanted to make this Leela understand that worshipping Govardhana is much more higher platform, and so instead of worshipping Indra, they can worship Govardhana. So all the Brajvasis will worship Govardhan, and Krishna will manifest in the Govardhan form, and he will take up all the offerings. तो जैसा कि आप लोगों को पता है ब्रजवासी जो थे पहले वो इंद्र की पूजा करते थे. उन्हें लगता था इंद्र जो है वो सारी चीजों को पहुंचाते हैं, सारे धन धान्य इत्यादि के कारण इंद्र है. बालक कृष्ण जो है वो अपने माता पिता को, नंद महाराज को और ग्वाल वालों को समझाते हैं कि ये सब जो धन धान्य वैभव जो है वो इंद्र की वजह से नहीं है. आपको इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये सारी कुछ जो चीजें हैं ये गोवर्धन की वजह से मिल रहे हैं. तो हमें इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए. Oh, you are not able to see the picture, huh? Yes, Prabhu. Oh, you could have told me, Prabhu. Or you could. I didn't. Now you're able to see? Yes, Prabhu. This you have already seen? No, Prabhu. This we already see, Prabhu. This already we have discussed. So Krishna will manifest after the worship. Krishna will manifest in the Govardhan. He will take all the offerings, and we all know, like the Indra will become angry, and continuously for more than 7 days, continuously the heavy rain, and Krishna will protect everybody by lifting the Govardhan hill. जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान जो है गोवर्धन का रूप धारण करते हैं और सारे जो भोग अर्पण जो हुए थे सारे को खा लेते हैं. उसके बाद इंद्र जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो घनघोर वर्षा समंतक बादल को भेजता है तबाही मचाने के लिए ब्रज में. लेकिन भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात अपने उंगली के नाखून के ऊपर स्थित कर ब्रजवासियों का रक्षा करते हैं. Hare Krishna. Hope Prabhuji. Yeah, where were we? So after that, most importantly, what will happen is after that 7 days, Indra will realize and he will come and seek forgiveness. And with Indra, he will get Surabhi, mother Surabhi cow also will come. She will come and do Abhishekam on Lord Krishna with her milk, and also Airavat, his elephant. It will bring all the holy rivers and do Abhishekam on Lord Krishna. तो इस लीला के अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इंद्र को अपनी गलती समझ में आती है और वो आता है, भगवान से क्षमा याचना करता है और अपने साथ ऐरावत और सुरभि गाय को भी ले आता है. सुरभि गाय अपने दूध से भगवान का अभिषेक करती है और ऐरावत जो है वो सभी पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान का अभिषेक करता है. And Indra and Mother Surabhi will offer wonderful prayers to Lord Krishna. और सुरभि माता और इंद्र देवता जो है वो भगवान को तरह तरह से उनकी प्रार्थना करते हैं. So this is the Govardhan Hill. We will take little more time to understand the Govardhan Hill Leela. Before
we start the parikrama. So Govardhan hill, as per the Shastra, it is in the form of a peacock. तो हम गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले गोवर्धन परिक्रमा से संबंधित जो भी शास्त्र के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे समझेंगे और फिर हम यात्रा पे आगे निकलेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो एक मोर के समान है। So the Kusum Sarovar is considered the face of peacock, and the end tail is called Punchari Kund or Naval Kund. तो कुसुम सरोवर जो है वो इस गोवर्धन पर्वत के मुख के समान है और नवल कुंड जो है वो पुंचरी कुंड जो है इस मोर के पूंछ के समान है। And when Lord Chaitanya Mahaprabhu came, he first took bath in Manasi Ganga, then had darshan of a very beautiful deity of Haridev before going to Govardhan Parikrama. तो चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए थे तो सबसे पहले उन्होंने मानसी गंगा में स्नान किया। उसके बाद बहुत ही सुंदर विग्रह हरिदेव जी के दर्शन किए और फिर उन्होंने अपनी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत की। And it is mentioned by Mahaprabhu himself that as somebody was asking, like why should we stay only for a shorter time in Vrindavan, because we should avoid Vaishnava aparadh, and also we should be very careful when we do Govardhan Parikrama. We should not step on the hill. तो किसी भक्त ने ये प्रश्न भी पूछा था क्यों हमें 3 दिन से अधिक जो है किसी धाम में नहीं रहना चाहिए। तो उसका उत्तर महाप्रभु बताते हैं कि हमें इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद हम वैष्णव अपराध से बचने के लिए। दूसरी चीज है दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें जब गोवर्धन परिक्रमा करने के समय हमें गोवर्धन शिला पर कभी भी चरण नहीं रखने चाहिए। हमें इस तरह से चलना चाहिए जिससे हम गोवर्धन शिला पर पैर नहीं रखें। And it is also an offense when we go for the parikrama, we should not take the hills, any of the shilas, any of the stones or anything. No, we should not take it. तो गोवर्धन शिला को उठा लेना ये भी एक जघन्य अपराध है। I think your voice is breaking. I don't know. Maybe my voice is. And मेरी Shila is so significant. Like when you get a Shila from somebody and you can directly start worshipping, there is no any formalities or there is no any specific thing required. So from any of the devotees or through somebody, if you get the Shila, then you can start worshipping them immediately. तो गोवर्धन शिला इतनी दिव्य होती है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा कि बताया गया है कि हमें गोवर्धन शिला वहां से नहीं लेनी चाहिए, गोवर्धन की तलहटी से। अगर कोई भक्त जो है हमें गोवर्धन शिला दे रहा है तो हम उसे लेकर और उसकी हम तुरंत पूजा अर्चना कर सकते हैं। So whatever you are seeing on the screen is the aerial view of Govardhan. So it, unlike a typical mountain round shape, it is more of kind of a ellipse or a kind of oval one, and it is around 24 kilometers in circumference. आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के पटल पर, ये गोवर्धन की जो है हवाई मतलब ऊपर से ली गई चित्र है। और जैसा कि प्रायः पर्वतों में होता है कि वो या तो चौड़े होते या लंबे होते, लेकिन ये जो है अर्धचंद्राकार आकृति में है ये पर्वत। So the maximum height is only 80 feet, and you will not see it's as tall as anything. So we have to be very careful when we start walking on the parikrama path. तो इस पर्वत की जो अत्यधिक ऊंचाई है वो सिर्फ 80 फीट है, और जब भी हम परिक्रमा करते हैं उस समय हमें बड़ी सावधानी पूर्वक से परिक्रमा करनी चाहिए जिससे हम किसी गोवर्धन शिला पर अपने चरण न रखें। And why it is called as Govardhanam means go means we all know go, and it has got very special kind of soft grass, fragrant grass, and very very nice grass for nourishable for the cows. And also under Govardhan all the cows are completely protected.
और इसे गोवर्धन क्यों कहते हैं? तो गोवर्धन का अर्थ है, गो का अर्थ है गाय, और वर्धनम का अर्थ है जो उसे पोषण पहुंचाए। तो इस गोवर्धन पर्वत पे आप एक विशेष प्रकार की महकदार जो है घास पाते हैं, और जिसको पाने के बाद जो गाय हैं प्रायः जो है वो हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाती हैं। So when Mahaprabhu came to Govardhan, he was so ecstatic. He just took some of the, he didn't want to enter into the Govardhan like, so wherever he found any kind of nice pastimes of Madhavendra Puri and all, he just stayed there and then started feeling his intense love of separation. He was able to see so many other pastimes also. And when Mahaprabhu came to Govardhan, immediately all the animals, the flowers, the trees there became so happy, and the animals started attracting towards Mahaprabhu. They started licking his legs. The peacocks started dancing. The deers came and played with him. The cows are also very happy that Krishna is back. So like that they had that move when they had darshan of Mahaprabhu. तो महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए व्रज में आए थे, तब गोवर्धन पर्वत को देख के बहुत ही भावोन्माद में वो लिप्त हो गए। उनके अंदर जो उनका भाव था वो जागृत हो गया। और फिर तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गोवर्धन पर्वत का दर्शन करने के बाद बहुत ही भावोन्मुक्त हो जाते हैं, और फिर उनकी ऐसी लालसा होती है कि मैं इस गोवर्धन को छोड़कर कहीं जाऊं ही नहीं। फिर वो माधवेंद्रपुरी से संबंधित जो भी लीला स्थली है जब उसे देखते हैं तो और भी वो उनका भाव और भी बढ़ जाता है। और उसके बाद जब महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा पे निकलते हैं तो उस पर्वत पे निवास करने वाले सारे जो पशु पक्षी हैं वो भी उल्लासित हो जाते हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं कि जिस तरह से जैसे कि कृष्ण जो है वो पुनः वापस आ गए हैं, और वो तरह तरह से महाप्रभु के निकट आकर गायें, मोर, हिरण इत्यादि महाप्रभु के निकट आकर उनसे जो है प्रेम का आदान प्रदान करने लगती हैं। And Mahaprabhu also will be very happy just by seeing all the animals, cows and all the places. He will also start having so much of love and affection, and he will also exhibit that feeling. महाप्रभु भी इन पशु पक्षियों को अपने निकट पाकर वो भी बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, और उनसे जो है वो जो भी आदान प्रदान करते हैं, विशेष तरह का आदान प्रदान करते हैं। So in and around Govardhan, there are more than 70 specific nice pastime places that we have to take darshan, which is very important in the Braj Mandal Parikrama. और आप लोग को जान के बड़ा ही उत्साह आएगा, आप लोग बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे कि हम इस ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान 70 जो है तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ पे भगवान की बहुत ही विभिन्न मधुर लीलाएं हुई हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग संयम बनाए रखें और हमारे साथ रहें। अब हम 70 जो भी मुख्य जो तीर्थ स्थलीय लीला स्थली है उनके हम दर्शन करेंगे इस गोवर्धन परिक्रमा के दौरान। So there's a Govardhan town also. When we walk through the parikrama, there's a small town also. Generally, everybody will start from Manasi Ganga Haridev temple, but as Gaudiya Vaishnavas from Rupa Goswami's footprints, we will start from Radha Kund side and end at Radha Kund. तो प्रायः इस गोवर्धन पर्वत के गोवर्धन परिक्रमा के दौरान एक छोटा सा गोवर्धन शहर भी है, लेकिन वो भी है। और जैसा कि प्रायः लोग करते हैं वो मानसी गंगा से जो अपनी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और मानसी गंगा पर गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करते हैं। क्योंकि हम जो है वो रूप गोस्वामी के हम अनुयायी हैं, तो हम वही करेंगे। हम रूप गोस्वामी का अनुगमन करते हुए राधा कुंड से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे और इसकी समाप्ति भी हम राधा कुंड पे ही करेंगे। It's very important. We all know when we start doing Braj Mandal Parikrama, we followed specific instructions, and this one here also when we perform Govardhan Parikrama, we should definitely follow all the rules and regulations as prescribed by our Shastras and our Acharyas. तो जब हम किसी धाम यात्रा पे जाते हैं तो वहां से संबंधित कुछ नियम और कानून का पालन करना होता है।
तो इसी तरह से जब हम गोवर्धन परिक्रमा का करने के लिए निकलते हैं तो हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और कानूनों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम निर्बाध रूप से गोवर्धन परिक्रमा का बिना अपराध किए गोवर्धन परिक्रमा करने का पूर्ण फल प्राप्त कर पाए। So as I mentioned earlier, it is totally around 24 to 25 kilometers. There is also an outer parikrama which is more little longer of 40 kilometers. So Sanatana Goswami will do this outer parikrama while he was staying near this Govardhan. तो गोवर्धन परिक्रमा की जो परिधि है वो 25 किलोमीटर की है, और एक बड़ी परिक्रमा भी होती है जिसकी परिधि जो है 40 किलोमीटर है। सनातन गोस्वामी जी इस बड़ी परिक्रमा को प्राय रोज ही किया करते थे जब वो गोवर्धन में निवास करते थे। And doing parikrama also, there are various ways, like somebody can just keep walking, chanting with japa. Somebody will do something called as Dandavat Parikrama. In Dandavat Parikrama, is like they will do one Dandavat and then take next step and do Dandavat. And then there is another Dandavat Parikrama where for each step they will do 108 times Dandavat and then the next step. तो परिक्रमा करने की भी बहुत सारे तौर तरीके हैं। बहुत सारे भक्त जो है अपने अपने हिसाब से गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। सबसे सरल जो परिक्रमा है, कई भक्त जो है वो चलते चलते हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त जो है वो दंडोत परिक्रमा करते हैं। दंडोत परिक्रमा करने में भी दो तरीके हैं। पहली तरीका ये है जिसमें हम दंडोत करें और उसके बाद जिस स्थल पे हमारा दंडोत समाप्त हो उसके बाद उस स्थल से हम दूसरा दंडोत करें। इस तरह करते करते हम गोवर्धन की परिक्रमा करें। तो जो एक बड़ा ही विषम जो परिक्रमा है वो 108 दंडोत करने का। तो कई भक्त एक ही स्थान पर 108 बार दंडोत करते हैं, फिर वो अगले पग पर जाते हैं। So there are so many devotees, Brajvasis, Dhamvasis, Babajis who are being continuously doing this 108 times parikrama for many years. तो कई ब्रजवासी है, कई भक्त हैं, कई बाबा जी गण है जो इस 108 एक ही स्थान पर 108 दंडोत परिक्रमा करके गोवर्धन की परिक्रमा कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। So on the way when we go to parikrama, we should see their mood and bhav and bhakti, and we should pray that we also should get that determination, that vairagya to complete the parikrama with the same mood. तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा पे निकले और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जब हम ऐसे भक्त देखे जो बहुत ही विषम तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए दंडवत प्रणाम करके जा रहे हैं, तो हमें मनी मन यही कामना, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उसी तरह का भाव, उसी तरह का वैराग्य मिले जिस तरह का भाव और वैराग्य इन भक्तों के अंदर है, और हम उसी भाव और उसी वैराग्य में होते हुए गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त कर पाए और पूरी कर पाए। गोवर्धन परिक्रमा की जय। सो वी विल स्टार्ट विद गोवर्धन परिक्रमा। तो अब हम गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। So on first thing on our when we come from Vrindavan, from the main road towards our right hand side will be Radha Kund, and then from left hand side Kusum Sarovar and everything will start. So while completing the parikrama, then we will get into Radha Kund, Sham Kund. But now we will take a left, and then we will go to after Kusum Sarovar we will first start darshan of Manasi Ganga. तो जब हम वृंदावन की तरफ से आते हैं तो एक रास्ता जो है वो राधा कुंड की तरफ जाता है और दूसरा राधा कुसुम सरोवर होते हुए आगे की ओर निकलता है। तो हम जब राधा कुंड पे परिक्रमा समाप्त करने के समय पे आएंगे, अभी हम पहले मानसी गंगा चलेंगे और परिक्रमा की शुरुआत हम मानसी गंगा से करते हैं। So this beautiful Manasi Ganga is very huge lake where Krishna and gopis have done a lot of nice pastimes. So we can take darshan of this Manasi Ganga, where after killing the demon called Vasasura, when all the gopis tell you have to go and take bath in all holy rivers, Krishna brought all those rivers, and the first thing was this Manasi Ganga that was created. तो वत्सासुर ये जो मानसी गंगा है, ये इस स्थान पर अभी एक बहुत बड़ी झील है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं।
तो इस मानसी गंगा के संबंध में कथा ऐसी है कि जब भगवान ने वत्सासुर का वध किया था, फिर उसके बाद जो गोपियां हैं उन्होंने कहा कि अब आपको हर जो भी तीर्थ स्थान है वहां पे जाके स्नान करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वत्सासुर जो था वो गाय के बछड़े के रूप में आया था। तो उन्होंने गोपियों ने कृष्ण के ऊपर गोहत्या का, उन्होंने कहा क्योंकि तुमने गोहत्या की है तो इसका बहुत जघन्य पाप है, और ये पाप तभी मिटेगा जब आप सारे जो है सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करेंगे। भगवान ने स्नान करने के उद्देश्य से इस मानसी गंगा में सारे तीर्थों का जल, सारी नदियां जो है वह स्वतः आ गई और भगवान ने इसी स्थल पे स्नान किया। So it got created from the mind, Manasi, from the mind of the Lord. और ये स्थल जो है, ये झील जो है वो भगवान के मन से इसका आविर्भाव हुआ है। इस वजह से इस स्थल का नाम है मानसी गंगा। So now the beautiful lake is fully decorated, fully renovated, and you will see the huge small temples and the ghats all built by the Hindu kings of Rajasthan. तो इस स्थली का बहुत ही अच्छी तरह से जीर्णोद्धार कराया गया है राजस्थान के हिंदू राजाओं द्वारा। And there are so many nice pastimes, but one of the most important nice pastime is the boat pastime, where Krishna will act as a boatman. So one day when all the gopis with Srimati Radharani, when they want to go across from this side of Govardhan to other side, because this Manasi Ganga is very large, where you have two sides, like one side of Govardhan is Manasi, and when we do the parikrama, we can see the other side of Manasi Ganga. तो इस लीला स्थल पर भगवान ने बहुत ही दिव्य लीलाएं प्रस्तुत की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण लीला है वो है नाव की लीला, जिसमें गोपियां जो हैं वो मानसी गंगा को पार करके इस पार से उस पार जाना चाहती थी, क्योंकि मानसी गंगा उस काल में बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही चौड़ी और लंबी थी। तो जो गोपियां हैं वो उस पार जाने के लिए एक नाव में बैठी थी। So one day when all the gopis came with all their milk pots and everything, and when they wanted to cross, Krishna will ask for money, and then they will say, okay, we will give you this all this whatever we have. And after some time, in between when they were trying to cross, Krishna will make one leela by which there will be some kind of a storm that was created. तो एक दिन जो गोपियां हैं अपना दूध दही वगैरह लेके इस मानसी गंगा के तट पे आती हैं और उन्हें उस पार जाना होता है। कृष्ण और उनके ग्वाल सखा जो है उन्हें कहते हैं कि आपको कर देना पड़ेगा। गोपियां जो है वो कहती है दूध दही मक्खन जो है आप रख लो और फिर हमें जाने दो, और गोपियां वो एक नाव में बैठ के इस पार से उस पार जाने लगती हैं। जैसे ही वो मध्य में पहुंचती हैं, भगवान एक लीला रचते हैं। हरे कृष्णा। भगवान एक लीला रचते हैं, उसके बाद वो बताइए। So he will create one big storm, and all the gopis will become so fearful, and they will ask the boatman, what should we do? Then the boatman will say, you have to throw away all your pots, whatever milk, whatever you have to throw it away. And then all the gopis will be astonished, but they don't know what to do, so they will throw away all the pots. After some time also they will keep going, and then again there will be another storm, and then the gopis will ask, what should do? Okay, throw away all your gold bangles, whatever weight is there, because it is large weight. The boat is not able to hold on. तो गोपियां जो है जब मध्य में पहुंचती है तो भगवान लीला ऐसी रचते हैं कि एक तूफान आ जाता है, और तूफान आने की वजह से जो उनकी नाव है वो गोपियों की नाव डावाडोल होने लगती है। फिर वो सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, कृष्ण से कहती है कैसे हमारी सुरक्षा होगी। तो कृष्ण कहते हैं कि आप जो ये दूध दही मक्खन लेके आई हैं, इस वजह से ये जो नाव है भारी हो गई है, तो आपको अगर बचना है तो ये दूध दही जो है ना फेंक दीजिए इसे में। तो गोपियां कहती है ठीक है फेंक देते हैं। फिर वो सारा दूध दही मक्खन की जो मटकियां थी वो पानी में फेंक देती हैं। फिर कुछ दूर चलती है, फिर भी जो है नाव वो अशांति रहती है, मतलब वो जाता। फिर वो कहती है अब कैसे, क्या हमने तो दूध दही भी फेंक दिया, अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि दूध दही नहीं, ये जो आपने सोने के गहने वगैरह लाद रखे हैं ना, ये हार ये सब इसकी वजह से जो है ना नाव जो है वो डावाडोल है, इन सबको फेंक दो उठा के। तो गोपियां कहती है ठीक है,
कीमती वस्तुएं क्या करें, फेंक देती है सारा कुछ. And then afterwards, after the boatman say, still it is not there. Now you have to throw away your clothes also, like that he will say. And all the gopis will become very angry. And then immediately there will be a big thunder and lightning. And then Radharani will just rush towards the boatman out of fear. And when she rushes, she will notice the yellow color garment of Krishna and also his flute. Immediately she knew who is that boatman. And then she will just seek protection under him. और फिर वो फिर जो भगवान फिर जो है वो जो नाव डावाडोल रहती है, तो वो कहती हैं कि अब क्या करें. तो भगवान कहते हैं उनको कि अब जो है ना अपने वस्त्र उतार के फेंक दो, क्योंकि वस्त्रों की वजह से वस्त्र बहुत भारी है आप लोगों के, इसी की वजह से नाव डावाडोल हो रही है. और फिर इन गोपियों को बहुत क्रोध आता है और उसी बीच बहुत जोर से बिजली चमकती है और राधा रानी जो भयाकुल होकर वो निषाद के पास दौड़ के जाती है. जैसे वो निषाद के पास जाती हैं वो पीले वस्त्र देखती है और बांसुरी देखती है और राधा ने तब तुरंत समझ जाती हैं कि ये नावी, ये जो निषाद है ये कोई और नहीं, ये कृष्ण ही है. So this is very nice pastime. We just told you in a very short sequence, and lot of tatparyam or lot of philosophy is involved in this leela. ये लीला जो हमने इतनी संक्षेप में इसे बताई है, इस लीला में बहुत ही मर्म है और इसमें बहुत ही आचार्यों ने बहुत ही विस्तृत इस लीला के ऊपर टीका टिप्पणी लिखी है, लेकिन समय के अभाव से हम इसे संक्षेप में ही इसका श्रवण करेंगे. So like this, there are so many other nice leelas done in this particular lake called the Manasi Ganga. और इस स्थल पर मानसी गंगा में भगवान ने इसी तरह की बहुत ही मनोरम और मधुर लीलाएं प्रस्तुत करी हैं और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं. So in this Manasi Ganga place, there is a very nice mandir for Manasi Devi, Manasa Devi. तो इस मानसी गंगा के घाट के निकट ही मानसी देवी के लिए एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है. So we can take darshan of Manasi Devi. आप अपने मोबाइल पटल पे मानसी देवी के दर्शन कर सकते हैं. So we have to assume Manasi Devi is also like the other Devis who are protecting the Vrajamandal Dham and also facilitating the Leelas. तो हमें ये समझना चाहिए कि मानसी देवी जो है वो एक क्षेत्रपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जो ब्रजधाम को किसी भी अशुभ चीजों से उसका संरक्षण कर रही हैं और साथ ही साथ मानसी देवी जो हैं वो भगवान की लीलाओं में भी सहयोग कर रही हैं तरह तरह से. So we have four major Devis. We are Manasi Devi in Manasi Ganga, Yogamaya, like we know the Purnamasi in Vrindavan, and Pataleshwar Devi in Mathura. We saw Pataleshwar Devi, no? So Parvati Devi, the Pataleshwar Devi in Mathura, and in Kamyavan we have Vrinda Devi. So ब्रज में चार जो देवियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुविख्यात है. मानसी देवी जो है मानसी गंगा में स्थित है, योग माया जो है वृंदावन में स्थित है, पातालेश्वर देवी मथुरा में स्थित है और वृंदा देवी जो है कामेवन में स्थित है. So inside this Manasi Ganga place, there is also a very nice Shiva temple called Chakleshwar Mahadev. और इस मानसी गंगा के निकट ही एक बहुत ही सुविख्यात शिव जी का मंदिर है जिसे हम चकलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं. And here one day when Krishna came, he sat in this place and his crown's impression is felt or no appeared on a stone. So we can take darshan of Krishna's crown also. तो इस स्थान पे ही एक दिन भगवान कृष्ण जो है वो आते हैं और उनके जो मुकुट है इसी स्थल पे वो उसको रखते हैं, जिस वजह से उस स्थान पे उनके मुकुट के चिन्ह बन जाते हैं, जिसके दर्शन हम अभी भी कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल के पटल पे उस मुकुट के चिन्हों को देख सकते हैं. It is also called as lotus mouth, which is nothing but because the place was like kind of very beautiful and Krishna's mouth, so they all had named it as Mukharavinda Shila and Mukut Shila. Both of them are there together.
क्योंकि ये जो शिलाएं हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छी हैं। इस वजह से इन शिलाओं का नामकरण हुआ है मुखारविंद शिला और मुकुट शिला। And Mukharavindam is Krishna's mouth, and Mukharam means the front or the face. So that is also one way they are saying. But mostly we have to just see it as more from how they worship the deity. That's all. तो मुखारविंद का अर्थ होता है भगवान का मुख। तो जो ब्रजवासी जो वहां पे पंडित है वो बताते हैं कि भगवान का मुख है। और हमें जो है हमें इस तरह से समझना, हमें ये तरह से देखना चाहिए इन चीजों को कि किस तरह से, कितनी भव्यता से और कितने प्रेम से भक्तगण जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमें इस भाव से उस शिला का दर्शन करना चाहिए। And then Shakleshwar Mahadev is also the big Kshetrapalaka Shivarman who is protecting the entire this region, including the Govardhan, Radhakund and other places. चकलेश्वर महादेव जी जो है वो इस ब्रज के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रपालों में से एक है, जो ब्रज धाम को किसी भी अशुभ चीज से या किसी भी गलत घटना होने से बचाते हैं। मानसी गंगा की जय। So we'll go to next one called as Chakratirth. अब हम मानसी गंगा के निकट चक्रतीर्थ नामक स्थान पर आते हैं। So what happened was when Indra continuously gave so much of water all through the 7 days, it was so much of heavy flooding. So Sudarshan Chakra, Krishna's chakra, came above or on top of Govardhan and started generating so much of heat to reduce the water. And so above on top of the Govardhan hill, the chakra was also there, trying to cover as much as possible and generate heat also. So the chakra, to signify that particular thing, we have this called as Chakratirtham. जैसा कि आप लोगों को विदित है, गोवर्धन जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था उस समय इंद्र जो है वो क्रोधवश उसने बहुत ही घनघोर संवर्तक बादलों के साथ उसने बहुत ही घनघोर वर्षा की थी। तो घनघोर वर्षा होने की वजह से ब्रज जो है वो पूरा ब्रज में बाढ़ की स्थिति हो गई। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र जो है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर इस तरह से कार्य करने लगा, गर्मी जो है उत्पन्न करने लगा जिससे वो जो बारिश है वो सूख जाए और ब्रज जो है उसमें बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो। इस लीला के अंतर्गत इस लीला को उद्बोधित करने के लिए ही ये जो स्थल है उसे चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। And during that time, Sheshanag, Krishna's the bed, he also drank as much as water as possible. और उस गोवर्धन लीला के दौरान शेषनाग जी ने भी बहुत ही सहयोग किया और जितनी भी वर्षा जो है इंद्र के बादल कर रहे थे और उतना ही पानी जो है शेषनाग जी उसे पी जा रहे थे। And most significantly, Radha Krishna's pastime में the first swing leela, they will do this swing, like that leela took place in this particular place. और भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं में जो प्रथम बार जो झूलन जो लीला हुई थी वो इसी स्थल पे हुई थी। So in the coming month during Balram Jain period, we have the beautiful Jhulan Yatra. और बलराम जयंती के निकट हमें झूलन यात्रा उत्सव मनाने का भी अवसर मिलता है। So you remember this Govardhan Shila of Sanatan Goswami. This is in Radha Damodar Mandir. तो आप लोग को विदित होगा, याद होगा कि जब हम राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में दर्शन कर रहे थे उस समय हमें इस गोवर्धन शिला का भी दर्शन हुआ था। So this is the footprint of Krishna and also footprint of the cow here. और आप यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और उस बछड़े की भी चरण चिन्ह देख पाते हैं। And there's a small bhajan kutir of Sanatan Goswami in this particular near this Chakratirth. और चक्रतीर्थ के निकट में ही सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी स्थित है। So Sanatan Goswami used to do the big outer parikrama daily, and he has done this 108 dandavats across
over the Govardhan Parikrama. और 1000 दंडोत परिक्रमा. Yes. ओके. तो सनातन गोस्वामी पाद जो थे वो गोवर्धन की जो 40 किलोमीटर परिधि वाली जो परिक्रमा थी वो रोज करते थे, और सनातन गोस्वामी पाद ने 1008 दंडोत, एक ही स्थान पर 1008 दंडोत करके इस तरह से भी सनातन गोस्वामी ने गोवर्धन की परिक्रमा की है. And then during his old age, when he wanted to stay at near this Chakratirth, there was a lot of mosquitoes and he was not able to do his sadhana. Then he wanted to go, but the Chakleshwar Mahadev, Shiva will say, what is your problem? No, there are a lot of mosquitoes, I'm not able to do any seva and sadhana. Then from that day onwards, Lord Shiva ensured there is no single mosquito or no problem occurring because of any other thing. So Sanatana Goswami's seva and sadhana was very much protected by Chakleshwar Mahadev. तो वृद्धावस्था के दौरान जब सनातन गोस्वामी यहाँ पे अपनी भजन करते थे और सेवा भजन करते थे, उस समय यहाँ पे मच्छरों का बहुत प्रकोप था. तो उस मच्छरों के प्रकोप की वजह से सनातन गोस्वामी पाद जो है चकलेश्वर, इस अपनी भजन कुटीर जो चकलेश्वर महादेव के मंदिर के निकट है वहां से जाने लगे. तो शिव जी जो है वहां पे आके पूछते हैं कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आप यहाँ पे अपना भजन क्यों नहीं करते. तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि ये जो मच्छर जो है ना, उन्होंने मेरा जीना मुहाल कर दिया, ये मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं. तो शिव जी ने कहा कि आज के बाद आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा, और उस दिन से आज तक चकलेश्वर महादेव के निकट कोई भी मच्छर नहीं लगता, महादेव की कृपा से. And then on the way when you cross the road, there is a very nice small temple called Haridev temple. और जब हम सड़क पार करते हैं तो हम हरिदेव मंदिर के पास निकट पहुंचते हैं. So on the parikrama, after Manasi Ganga, after Chakleshwar Mahadev, after Chakratirth, all those things will be on the right hand side. Left hand side, we will see, just we have to cross that road, we will see this Haridev temple. Very, very beautiful Krishna temple where you can take darshan of Haridev. तो हरिदेव जो मंदिर है वो चकलेश्वर मानसी गंगा के इस उस मतलब निकट ही है, उस पार, सड़क के उस पार जो है ये हरिदेव मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान हरि के विग्रह है. So this deity is there for the past during Krishna's time itself, more than 5,000 years old deity. ये विग्रह जो है वो 5,000 वर्ष पूर्व पुरातन विग्रह है. So usually when Radha Rani and gopis, when they come to this Govardhan hill and all these places, they will have nice pastimes. So one day they were waiting for Krishna to come. So they took some more time for Krishna to come. So all these gopis and Radha Rani, they just started chanting this name called Haridev, 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 like that they started chanting. And by the time Krishna came, a very beautiful this deity form start manifesting there. तो एक दिन जब गोपियां और राधा रानी इस लीला स्थली रमण के लिए इस स्थल पे आई थी, तो फिर वो कृष्ण भी वहां पे आने वाले थे, लेकिन कृष्ण को आने में कुछ विलंब हो गया. तो गोपियां जो है वो हरिदेव हरिदेव करके कीर्तन करने लगी, और उसी दौरान जो है वो ये विग्रह जो बहुत ही उनके कीर्तन करने से इस बहुत ही सुंदर विग्रह का निर्माण हुआ, स्वयंभू निर्माण हुआ, और उसी दौरान भगवान भी यहाँ पे उपस्थित हो गए. And after that, many times whenever gopis and Radha Rani come to this Govardhan, they make it a point to come here, worship this Haridev deities, and then they will do whatever their activities. तो गोपियां जो है जब कभी भी इस स्थल पे आती थी तो ये इस चीज को, इस हरिदेव मंदिर में आके इसकी पूजा अर्चना इस विग्रह की जरूर करती थी. And during Mahaprabhu's Govardhan Parikrama, Brajamandal Parikrama, he came here and when he saw Haridev, he was so ecstatic and he stayed here for some time, and in 1515. And during that time, it is mentioned that there was more than 108 kunds across this place. महाप्रभु जब अपनी वृंदावन यात्रा पे आए थे तो गोवर्धन परिक्रमा करने के दौरान वो इस स्थान पे जब पहुंचे तो इस स्थान को देखकर बहुत ही अभिभूत हो गए, और इस स्थान पर वो कुछ दिन के लिए रुके. शास्त्रों में वर्णन आता है 1515 ईस्वी सन के आसपास इस स्थान के निकट कम से कम 108 छोटे बड़े कुंड थे. And there is a nice small
Krishna Balram Mandir of Nanda Maharaj. So when Nanda Maharaj also comes to this side, he will also stay here. It is a small resting place for him. So that resting place is now converted into a temple called Krishna Balram Nanda Maharaj temple. तो नंद महाराज भी जब इस स्थल पे आते थे तो वो आकर इस हरिदेव विग्रह का जो है वो पूजा अर्चना करते थे और यहाँ पे आके विश्राम करते थे। वो विश्राम स्थली जो है आजकल वर्तमान युग में उसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया है और उसे कृष्ण बलराम और नंद महाराज मंदिर के नाम से विख्यात है। Okay, I think we will stop here. Tomorrow we will continue with Hare Krishna. तो अब यहीं पे हम विश्राम लेंगे और कल आगे हम कल अपनी गोवर्धन यात्रा जारी रखेंगे। भक्तगण से अनुरोध है, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई निराकरण, किसी तरह की कोई आशंका का निराकरण करना है तो अपने मोबाइल के पटल पे वो हाथ ऊपर करे और एक एक कर अपने प्रश्न को निराकरण और उत्तर पाए। हरे कृष्ण।